same topic but with the numerical problems. Right. Let's wait for 1 more minutes. People are coming. Okay. Good morning, Surojit. Good morning. Just a second. All right. So, I have asked Deepak and Nisha about any problem from the yesterday's discussion. So, rest of the people have joined just now. बेटा कोई problem जो भी हमने कल discuss किया था उसमें किसी को? No. Sushmita said no. Okay. Jagrati said no. All right. So, I hope everybody is clear with what do we actually mean by correlation. All right. This is the thing which we have discussed. Right. I hope it is visible to all. Yes, sir. Great. So this is what we have discussed yesterday, that what do we actually mean by the term called as correlation. And apart from this, we have done with the range of correlation, that correlation coefficient which we'll be calculating today. The range of that particular correlation is from -1 to +1. It can be the minimum value for the correlation coefficient is -1 and the maximum value is +1. Then we have talked about the types of correlation, the different types of correlation, like positive or negative, simple, partial and multiple, and linear and non-linear. So these are the things which we have discussed already. Now, as we are moving ahead for these, this is the last slide which we have discussed yesterday. कल हमने ये जो एक last slide थी ये हमने की थी, which is the methods to calculate correlation. Now, when we talk about methods to calculate correlation, wait a second. Yeah. So when we talk about the methods to calculate correlation, we have
this Karl Pearson coefficient of correlation, Spearman's rank correlation method, and scatter diagram method, out of which these two are the calculation based method in which you will be doing some calculation and then आप एक आंसर निकालते हैं, उस आंसर का इंटरप्रिटेशन हम करते हैं and then we'll be telling कि कोरिलेशन बेसिकली जो भी कोरिलेशन की कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दैट. सो दिस इज ऑल वी हैव डन in the last class. Now before jumping on to the numerical part of correlation, I would like to discuss we'll start with this Karl Pearson coefficient of correlation. So Karl Pearson's coefficient of correlation. Now this Karl Pearson coefficient of correlation, I hope it is quite clear to everyone. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. So this Karl Pearson correlation coefficient, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया और उसमें इन्होंने correlation coefficient को R से डिनोट किया, that the correlation coefficient is R, and this obviously is R की जो वैल्यू है, this will be greater or equal to -1 and less than or equal to +1. This is for sure, ये होगा. Now इन्होंने जो फॉर्मूला दिया, that formula was R is equal to covariance between, let's suppose two variables are there, x and y, divided by standard deviation of x and standard deviation of y. This was the logic of correlation coefficient calculate करने का ये फॉर्मूला था. नाउ इसमें दो टर्म्स यूज हुई है. वन इज कोवेरियंस एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टू, हम जब इन दो की बात करते हैं तो कोवेरियंस और कोरिलेशन, ये दो चीजें आपस में रिलेटेड लगती है. मैं अभी सिर्फ थियोरेटिकली बता रहा हूं, अगेन फिर मैं समराइज करके आपको बता दूंगा. जस्ट कीप ऑन लिसनिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. एक होता है कोवेरियंस और उसी के यूज से आपने कैलकुलेट किया कोरिलेशन. नाउ कोवेरियंस और कोरिलेशन, ये दोनों वर्ड थोड़े थोड़े सिमिलर से लगते हैं और इनका काम सेम सा है. कोवेरियंस आपको रिलेशन बताएगा, रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स, जो भी आपके दो या दो से ज्यादा जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताएगा. कोरिलेशन ऑल्सो टेल्स यू दी रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स के बीच में, ये भी आपको रिलेशनशिप ही बताएगा. सेकंड थिंग, कोवेरियंस आपको डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, किस डायरेक्शन की रिलेशनशिप है, डायरेक्शन इन द सेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बता देगा. दिस विल ऑल्सो टेल यू द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी बता देगा. बट फिर अगर दोनों चीजें सेम है तो आपका एक क्वेश्चन यहां बनता है कि सर फिर देन व्हाई वी आर स्टडीइंग कोरिलेशन. हम कोवेरियंस को ही निकाल लेते हैं और कोवेरियंस से ही हम रिलेशनशिप पता कर देंगे, क्योंकि वो भी रिलेशनशिप बता रहा है, कोरिलेशन भी रिलेशनशिप बताता है, वो भी डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बता रहा है और कोरिलेशन भी डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है. देन व्हाई वी आर स्टडीइंग कोरिलेशन? सो now we need to understand the difference that covariance versus correlation. जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको कोरिलेशन को पढ़ना पड़ता है, वो ये है that covariance cannot tell the strength of relationship.
पहली कमी तो ये है। दूसरी, कोवेरियंस इज अफेक्टेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल्स। इन दो चीजों की वजह से हमें कोरिलेशन करना पड़ता है, बिकॉज कोरिलेशन पे इन दोनों ही चीजों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फर्स्ट थिंग, कोरिलेशन टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। सो कोवेरियंस आपको डायरेक्शन बताता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोरिलेशन भी आपको डायरेक्शन बताता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोवेरियंस जो है वो यूनिट से अफेक्ट होता है। व्हाट डू वी मीन बाय यूनिट्स? यूनिट से अफेक्ट होने का मतलब ये है दैट कोवेरियंस, let's take one example. Let's suppose आप हाइट एंड वेट का के बीच में रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं, एंड दिस हाइट इज इन लेट्स सपोज सेंटीमीटर एंड दिस वेट इज इन केजी। ओके, वेट। सो ओके, क्लास में जितने लोग हैं उनमें से कोई अपनी हाइट बताए सेंटीमीटर में। 161. 161। ओके, नेक्स्ट। 175. हाँ 175. बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर 175 बोला. 175। ओके, 175। और मेरा कोई? मेरा 183 दीजिए सर। 183। ओके, और कोई? क्लास में और भी लोग हैं भाई। तो चलिए ठीक है, एक तो और ले लेते हैं। 166 सेंटीमीटर्स, 167 सॉरी 169 सेंटीमीटर्स इन ऑल। नाउ वेट मैं खुद ही लिख देता हूँ। लेट्स सपोज 60 kgs, 65 kgs, 83 kgs, 72 kgs and let's suppose 79 kgs. So when you calculate covariance of these, हम कैलकुलेट करते हैं कोवेरियंस का बहुत ही जनरली मैनुअल कैलकुलेशन का फॉर्मूला बहुत इजी है। समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। समेशन x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर कोवेरियंस। ठीक है, इसमें ये हो जाता है i इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे i लगा देते हैं, यहाँ पे i लगा देते हैं। दैट्स अ सेपरेट इशू, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये जो हमने छोटा सा एक क्वेश्चन लिया है ना, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। दिस वन, ओनली दिस वन। मेक 2 columns, one is height in centimeter and second is weight in kilogram. And just let me know when you are done with this. Yogesh said done, Deepak said done, Sushmita, Jagrati, Surojit, acha, okay. Nisha said done. Okay, so I hope everybody has noted down the question. Yes, no, yes sir. Okay, okay. So and formula for covariance भी लिख लिया? This one? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. So now quickly tell me the height in centimeter, जो भी हमने डेटा लिया,
and weight in kg. Yes, बताइए क्या था? 161, हम्म 175, हम्म 183, हम्म 166, राइट. 169. दैट्स इट, इतना ही था. Yes, ओके, वेट 60, 65, 83, 72, 79. Okay, so this height is your x and this weight is your y, and covariance, the formula for covariance is summation x minus x bar multiplied by y minus y bar divided by n. So अब पहले इस फॉर्मूले को समझिए. फॉर्मूला सेज कि आपको सम, दिस इज समेशन, ये हमने यूज किया है, summation of x minus x bar into y minus y bar. So आपको कैलकुलेट करना है x minus x bar and y minus y bar and इनका multiplication. So these three columns you require manually calculate. Now can anyone tell me कि बेटा ये x bar और y bar क्या है? Arithmetic and mean, sir. हाँ, तो x bar किसका अर्थमेटिक मीन है? Height का, sir. हाइट, हाँ हाइट का. हाइट का मतलब जो भी आपने x जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अर्थमेटिक मीन है ना? एंड y? Y weight का, sir. y वेट का. तो इसका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा आराम से. Yes, sir. फटाफट कैलकुलेट करिए दोनों का. व्हाट इज x बार एंड व्हाट इज y बार? बेटा जिनको नहीं आ रहा कि x बार y बार, बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, y बार इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n. y का टोटल करके x का टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से डिवाइड कर दो और y का टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से. हाँ Sir, X bar is equal to 170.8. 170.8. ओके, एंड और y Y bar बार is equal to 71.8. 71.8. 8. ओके, बाकी सबका भी यही आ रहा है आंसर x बार y बार Yes, का. sir. ओके ओके, दैट मींस इट्स ओके. सो नाउ अब हमें क्या करना है x माइनस x बार कैलकुलेट करना है. तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा, आप भी साथ के साथ बनाते रहिए. x माइनस x बार, कोई बताएगा क्या करना है? किसी को कुछ समझ आया? x की हर वैल्यू में से x बार विच इज 170.8 इसको माइनस करते जाओ. मींस 161 माइनस 170.8 कितना आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ रहा है आप लिखते जाइए बस. Sir, -9.2. हाँ, -9.2. -9.2. ओके, नेक्स्ट 175 माइनस 170.8. 4.2. नेगेटिव पॉजिटिव? ओके, Positive. 183 माइनस 170.8. 12.2. 12.2. 166 माइनस 170.8. -4.8.
minus 4.8. 169 minus this 7.8 Sir, minus 1.8. minus 1.8. 1.8. Yes. Okay. सबका यही आ रहा है? Yes, sir. ओके किसी को कोई दिक्कत अभी तक बेटा किसी भी कैलकुलेशन में? No, आई sir. होप नहीं होनी चाहिए बट फिर भी है तो बोलिए. चलें आगे. Yes, sir. सो नाउ सिमिलरली y माइनस y बार, y वैल्यूज ये रही और y बार 71.8 आपने बताया ये रहा. सो नाउ डू द सेम थिंग फॉर y. 60 माइनस 71.8 Sir, minus 11.8. okay. Then 65 minus 71.8 Minus 6.8, sir. okay. Then 83 minus 71.8 Sir, 11.2. positive. ठीक है. 72 minus 71.8 Sir, 0.2 0.2. okay. 79 minus 71.8 7.2. 7.2. यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. नहीं. Very good. So we have done with this. We have done with this. Now we need to multiply these x minus x bar into y minus y bar. So next column जो मैं यहाँ बनाऊंगा that will be x minus x bar into y minus y bar. करिए multiply करिए. Sir, X 11, 115.64. first वाला Yes, sir. 116 point Sir, 115.64. 0.64 okay. Next Minus 28.56. 28.56 okay. Then Sir, 136.64. okay. Sir, minus 0.96. Negative 0.96 Yes, sir. okay. Then Sir, negative 12.96. 12.96 okay. I want others to verify कि यही आ रहा है सबका. 115.64 negative 28.56 136.64 negative 0.96 and negative 12.96. Sir, first Yes, is sir. wrong. First क्या आ रहा है? 108.56. 108.656. 108.656 so let's take it 65. Sir, 56 आ रहा है. 108.656 No, sir. 56.56 आ रहा है. okay. Is it right now? Yes, sir. So 115 जिनका आ रहा था एक बार बेटा क्रॉस वेरीफाई करो. You can use calculator for this and you will be allowed to use calculator in your examinations also. So don't worry about that. Clear है या मैं करके देखूं Sir. मल्टीप्लाई? हाँ जी. सर जो ये x माइनस एक्स बार है जो फर्स्ट वाला है जो आपने 9.2 लिखा है 161 माइनस 170.8 है तो माइनस 9.8 आना चाहिए ना. Minus 170.8 सर 161 माइनस 170.8. yes 161 minus 170.8 wait a second. Yes it should be 9.8 9.2 बताया किसी ने negative 9.8 it is सही है.
सर इसी वजह से वो वैल्यू चेंज आ रही है, वैल्यू हाँ, हाँ। 115.60। Got it. So 9.8 multiplied by 11.8, it will be 115.64. दीपक बेटा करेक्ट कर लो x minus x bar की वैल्यू को. Yes, sir. राइट, परफेक्ट. और किसी वैल्यू में कोई कंफ्यूजन? No, sir. बाकी सब सही है, सबने क्रॉस वेरीफाई कर लिया. आई वांट एवरीवन टू डू इट इंडिविजुअली. सब लोग करेंगे, ऐसा नहीं है स्क्रीन पे आ रहा है बस कॉपी कर रहे हैं. ठीक है. सुरोजीत, सोमा, योगेश, कर लिया सबने? Yes, sir. ओके. सो अब वापस फॉर्मूले पे आते हैं. फॉर्मूला सेज sigma x minus x bar into y minus y bar. So you have x minus x bar into y minus y bar. So you want summation of x minus x bar into y minus y bar. So negative negative positive positive आपस में सॉर्ट आउट करके बताइए क्या आएगा. Is it 209.8? चेक करिए. यस सर 209.8। Okay. So it is 209.8. Sir, by dividing by 5, it will be 41.96. Okay. So covariance का फॉर्मूला बेटा summation x minus x bar into y minus y bar divided by n. So 209.8 तो ये वैल्यू हो गई and divided by 5. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लीजिए आप. 1 2 3 4 5. So it will be 209.8 divided by 41. 5. So it will be 41.96. ठीक है. सो इसकी यूनिट क्या हो गई? 41.96 सेंटीमीटर किलोग्राम. ठीक है. यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. नहीं है. ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है क्लियरली. आई मीन क्वेश्चन इन द सेंस द हाइट एंड वेट. Yes, sir. इसको एक बार वापस लिख लीजिए. कॉलम हाइट के कॉलम के बाद में एक कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा. वेट, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. टू प्रिपेयर वन कॉलम फॉर हाइट इन सेंटीमीटर एंड लीव वन कॉलम एंड देन राइट वेट इन किलोग्राम. ठीक है. सो नाउ आपके पास में हाइट का डेटा था. एक बार क्विकली कोई बताएगा मुझे क्या क्या डेटा आया था? 161, हाँ. 175, ओके. 183, 166, राइट. 169, 169 एंड वेट में 60. 60, 65, 83, 72, 79. 79. ओके. नाउ हम क्या करेंगे? अब इस चीज को हमने प्रीवियस स्लाइड में वी हैव डिस्कस्ड कि कोवेरिएंस कैन नॉट टेल द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, पहली बात. और कोवेरिएंस इज अफेक्टेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल्स. जो मेजरमेंट उनका हुआ है उनकी यूनिट से अफेक्ट होता है. तो हमने यहाँ पे क्या किया? हाइट जो थी वो सेंटीमीटर में थी एंड जो वेट था वो आपका किलोग्राम में था. तो हमने एक आंसर निकाल लिया. इस आंसर को हाईलाइट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा दैट जब हमने हाइट को सेंटीमीटर में लिया और वेट को किलोग्राम में लिया तो कोवेरिएंस केम आउट टू बी 41.96. नाउ यहां आते हैं.
अब ये जो हाइट है इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं? Yes, sir. कैसे? Yes, sir. हाउ? क्या करना होगा मुझे? हाउ टू कन्वर्ट दिस 161 सेंटीमीटर इनटू मीटर? सर 100 का वो 100 डिवाइड डिवाइड 100 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाय 100। सब श्योर है इसके लिए? Divided by 100. Yes, sir. Yes. ओके, सो कितना आएगा? 1.61, Yes, sir. 1.75, 1.83, 1.8. Yes, sir. 1.66 and 1.69. सो नाउ हम इस हाइट इन मीटर्स एंड वेट इन किलोग्राम इसको x और y लेंगे। अब आप लोग फटाफट मुझे x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार एंड x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वाई बार, ये मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। आपको सबसे पहले करना है x बार, देन y कैलकुलेट करना है y बार, और देन दीज थ्री कॉलम्स। स्टार्ट डूइंग इट क्विकली, we have 10 minutes and will have to utilize it. मुझे आप लोग आपका फाइनल समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बता दीजिएगा। चैट बॉक्स में सब लोग अपना समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार क्या आ रहा है वो लिख दीजिएगा।
Yes, nobody has answered yet. Okay, I'm getting the answer. Wait. That covariance is also there. Nisha said 0.416. Okay. So Deepak said 0.4196 and Nisha is also 0.4196. So can I assume it to be the right answer? I mean, sabhi ka ye aa raha hai. Two people have answered yes. So can you please tell me what is the answer? Unmute yourself and tell. Yes, sir. Yes. Sir, What is the answer for summation of x minus x bar into y minus y bar? To this. So 2.098. 2.098. Okay. And the covariance is So covariance is 0.4196. okay. Now please understand. पहले वाले क्वेश्चन में कोवेरियंस कितना आया था? Sir, 41.96. 41.9. 41.96. 96. ठीक है. So अब देखिए आप. If I am telling you कि दो वेरिएबल है x and y, उनके बीच में कोवेरियंस है 0.4196. Now there are another variables like y and z, and उनके बीच में कोवेरियंस है 41.96. So if I have not given you the measurement, the units कि x को किस किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर जो भी है उसमें किया गया है, y को किस यूनिट्स में मेजर किया गया है, तो आप इन दोनों में से किसको सबसे हाईली एसोसिएटेड बताओगे? 41.96 को या 0.4196 को? जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है. राइट और रॉन्ग? if I'm please Yes, sir. again listen to my question. I'm saying दो वेरिएबल्स हैं जिनका कोवेरियंस मैंने दिया आपको 0.4196 और अगले दो वेरिएबल्स हैं उनका मैंने आपको कोवेरियंस दिया 41.96. so you will be saying कि सर y and z ज्यादा एसोसिएटेड है, ज्यादा अच्छे से रिलेटेड है. Yes, sir. यस और नो? जबकि दोनों ही सेम वेरिएबल्स थे, सिर्फ मेजरमेंट यूनिट चेंज हुई और उनके कोवेरियंस की वैल्यू में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज कोवेरियंस टू गिव द एसोसिएशन. यस, दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं, तो आपको ये तो पता चल गया कि सर हाइट एंड वेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जो कि हमने कहा था ना कि डायरेक्शन बता देता है
सो पॉजिटिव डायरेक्शन बता दिया उसने आपको कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये लोग आपस में एसोसिएटेड हैं, ये बता दिया। बट व्हाट इज द स्ट्रेंथ? आप स्ट्रेंथ का पता नहीं लगा सकते बिकॉज कोवेरिएंस में जैसे ही आपने मेजरमेंट यूनिट्स को चेंज कर दिया एक्स और वाई की, उसका आंसर चेंज हो जाता है, राइट? हमने कोरिलेशन के लिए क्या बोला था? -1 टू +1 जाती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, कल बोला था, आज भी रिवाइज किया। Yes, sir. कोवेरिएंस की जो वैल्यू है बेटा, दैट गोज फ्रॉम -∞ टू +∞। सो दैट इज व्हाई हमें कोवेरिएंस के ऊपर कोरिलेशन को कैलकुलेट करना होता है। द ओनली रीजन इज दैट कोरिलेशन टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, कितना स्ट्रेंथ है उनके रिलेशन में, कितना बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है दो वेरिएबल्स, जबकि कोवेरिएंस उनकी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को बताने में फेल हो जाता है। एंड द रीजन इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट, units of the variables in which all these variables are being measured. आज की ये पूरी कहानी समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो ये जो भी आपने अभी कॉपी में नोट किया है, जो भी इस पूरी क्लास में आपने सुना है, एक बार इसको प्लीज बेटा रिवाइज जरूर करिएगा, सो दैट यू विल बी क्लियर कि हाँ, मतलब कोवेरिएंस, अगर एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोवेरिएंस और कोरिलेशन में से कोरिलेशन को ज्यादा वैल्यू क्यों दी जाती है, उसका रीजन है ये, दैट covariance cannot tell you the strength of relationship. It can give you the direction of relationship, but it cannot tell you the strength of relationship. ठीक है? So आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं. We'll meet again tomorrow and we'll continue and